Hello friends, today we are studying about antibiotics and their classification from B Pharma 6th semester Medicinal Chemistry 3rd. First of all, we have to learn the definition of antibiotics. An antibiotics is a chemical compound derived from or metabolically produced by microorganisms and that in high dilution antagonizes the growth, survival of one or more species of microorganisms. There are two important things we have to learn about antibiotics. First, how antibiotics are formed or synthesized. Second, what is the work of antibiotics? First, the antibiotics are produced or synthesized by microorganisms itself. Second, what is the work of antibiotics? The work of antibiotics is to kill or control the population of microorganisms. Classification of antibiotics. There are six types of antibiotics according to their structures. First, beta-lactam antibiotics. Second, aminoglycoside antibiotics. Third, tetracycline antibiotics. Fourth, peptide antibiotics. Fifth, macrolide antibiotics. Sixth, lincomycin antibiotics. Seventh, miscellaneous. Beta-lactam antibiotics are further divided into four types: penicillins, cephalosporins, carbapenems, manobactams. The mechanism of beta-lactam antibiotics to kill or inhibit the growth of bacteria of microorganisms is inhibit cell wall synthesis. There are few examples of penicillins, cephalosporins, carbapenems, and monobactams. Penicillins. Penicillin is further divided into several types. First, penicillin susceptible penicillins, penicillin G and penicillin V. Penicillin S resistant penicillins, methicillin, oxacillin, cloxacillin, decloxacillin, floxacillin, neficillin. Third, aminopenicillins, ampicillin, amoxicillin, bacampicillin. Fourth, carboxypenicillins, carbenicillin, carfacillin, indenyl carbenicillin, ticarcillin. Uridopenicillins, agglocillin, magglocillin, piperacillin. Miscellaneous penicillins, quinicillin, amidinopenicillins, acidocillins, talampicillins. This is the classification of penicillins. Now, cephalosporins antibacterial spectra. Cephalosporins are further divided into three generations: first generation, second generation, and third generation on the basis of antibacterial spectra. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रा का मतलब है वो कितने बैक्टीरियाज को या कितने माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर पा रहा है. अगर वो एक बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम में माइक्रो ऑर्गेनिम्स या फिर बैक्टीरियाज को किल पा रहा है कर पा रहा है तो थर्ड जनरेशन में आएगा. कम कर पा रहा है तो सेकेंड जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर किल एबिलिटी. फर्स्ट जनरेशन सेफेलोरिडीन, सेफ्लोथिन, सेफाफिरिन, सेफालेक्सिन, सेफालोग्लाइसिन, सेफाड्रोक्सिल, सेफाराडीन, सेफाजोलिन. सेकेंड जनरेशन सेफामेंडोल, सिफोक्सिटीन, सिफिरोक्साइम, सेफेक्लोर, सेप्रोजिल, सेफोटिटेन, सेफमेटाजोल. थर्ड जनरेशन सेफमिनोक्साइम, सेफोपिराजोन, सेफिटियम, सेफसुलोडिन, सेफ्टाजिडाइम, सेफ्टिजोक्साइम, सेफ्ट्रायक्सोन, सेफपिराम, सेफिक्साइम, सेफोडोक्साइम, सेफेटामेट, मोक्सालेक्टम. This is the classification of cephalosporins. Now carbapenems. Carbapenems have few examples. इमिपिनाम जिसको सिलास्टेटिन भी बोलते हैं. सेकेंड, 1 कार्बापिनाम्स. थर्ड, पानीपिनाम, थायनामाइंस, बायापिनाम, इटापिनाम, डोरीपिनाम, मेरोपिनाम. मोनोबैक्टम्स, इसका एक ही एग्जाम्पल है एजिट्रोनाम. इसको ज़रूर याद रखना, एजिट्रियोनेम मोनोबैक्टम. ओके. मिसलेनियस पेनिसिलिन्स, 1 miscellaneous beta-lactams, 1 oxacifams,
B. Beta-lactamase inhibitors. These are miscellaneous families in beta-lactams. हमने बीटा लेक्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. बीटा लेक्टम के सबसे को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले आते हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स. पेनिसिलिन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सिफेलोस्पोरिन्स का पढ़ लिया, कार्बापिनम्स का पढ़ लिया, मोनोबैक्टम्स का पढ़ लिया. नाउ अमीनोग्लाइकोसाइड्स. ओके. ये जो ब्लैक कलर में लिख रखा है ये फैमिली का नाम है, ब्लू कलर में एक ड्रग का नाम है. स्ट्रेप्टोमाइसिन फैमिली से हैं और डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन भी स्ट्रेप्टोमाइसिन फैमिली से हैं. नियोमाइसिन फैमिली से हैं. कानामाइसिन फैमिली से हैं. जेंटामाइसिन फैमिली से हैं. टोब्रामाइसिन कानामाइसिन फैमिली से हैं और फ्रेमिस्टिटेन सोफ्रामाइसिन फैमिली से हैं. सोफ्रामाइसिन भी बोलते हैं इसको. और पेरमोमाइसिन नियोमाइसिन फैमिली से हैं. अमीकासिन कानामाइसिन फैमिली से हैं. सिसोमिसिन जेंटामाइसिन फैमिली से हैं और निटिलमिसिन भी जेंटामाइसिन फैमिली से हैं. इनका क्या काम होता है? हमने जैसा पढ़ा था बीटा लेक्टम का क्या काम होता है. बीटा लेक्टम्स का मैकेनिज्म होता है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. वैसे ही ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है इनका वर्क होता है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं. और टेट्रासाइक्लिन का भी सेम ही काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं. हमने सबसे पहले बीटा लेक्टम पढ़ा जिसके अंदर पेनिसिलिन्स, कार्बापिनम्स और सेफेलोस्पोरिन्स और मोनोबैक्टम्स था. उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया. अब टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म होता है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. 30S बोथ आर 30S प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स 7 क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, रोलीटेट्रासाइक्लिन, लाइमिसाइक्लिन, सेंसीसाइक्लिन, क्लोमोसाइक्लिन. After beta lactams, aminoglycosides, tetracyclines, now we are going to classify macrolides antibiotics. इनका क्या काम होता है? IPS इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. जो पीछे थे अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स वो 30S को इनहिबिट करते थे, ये 50S को करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, 30S और 50S. फर्स्ट कार्बोमाइसिन ए फैमिली के नाम है. कैल्कोमाइसिन थर्ड. एरिथ्रोमाइसिन में ड्रग का नाम है टेलिथ्रोमाइसिन. फोर्थ ओलिंडोमाइसिन. फिफ्थ ल्यूकोमाइसिन A1. सिक्स्थ टाइलोसिन. सेवन्थ जोसामाइसिन एंड सिप्रामाइसिन. ड्रग के नाम है इसमें रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेडिथ्रोमाइसिन. ओके. नाउ मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स. फर्स्ट लिंकोमाइसिन फैमिली. सेकंड क्लोराम्फेनिकोल फैमिली. क्लोराम्फेनिकोल का क्या काम होता है और लिंकोमाइसिन का क्या काम होता है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस IPS. इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस 50S. ठीक है. लिंकोमाइसिन फैमिली के अंदर 2 ड्रग्स आती है और क्लोराम्फेनिकोल खुद ही एक ड्रग है. लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन जो कि लिंकोमाइसिन फैमिली से 2 ड्रग है. वी हैव फॉरगॉट ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स. ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स? इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. ये सेल वॉल सिंथेसिस को ही ब्लॉक करती है, मतलब रोकती है, जैसा कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म होता है. इनके एग्जांपल है वैंकोमाइसिन, टेलिकोप्लानिन, टेलावेंसिन, ओरिटावेंसिन, डेल्बावेंसिन. थैंक यू.